Hello students, today we are going to start the first chapter of our book called Rational Numbers. But before starting rational numbers, we must know what do you mean by rational numbers actually. Before starting the rational numbers, let us just have a quick revision of the other types of numbers. Starting with natural numbers. What are natural numbers? The numbers starting with 1, 2, 3 and so on, they are called natural numbers. The numbers that begins with 1. जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स. ना होल नंबर्स, the numbers that begin with 0, है ना. तो 0, 1, 2, 3 and so on, these are whole numbers. Now integers you have studied in your previous classes also. Integers are those numbers which includes both positive and negative values like -3, -7, 0, 1, 7, 8, like positive and negative as well as they are called integers. Now what are rational numbers? Rational numbers are those numbers which are in the form of P upon Q. रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? P upon Q. Quite similar to fraction, isn't it? But there is some difference between fraction and rational number. What is it? In fractions we have not studied about the negative fraction, है ना. हमने नेगेटिव फ्रैक्शंस ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? नहीं. पर रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस में यही डिफरेंस है कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी. इसमें एक चीज ध्यान देनी होगी कि ये क्यू यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है आपका, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. अगर नीचे आपका जीरो हो जाता है तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा. ठीक है, तो रेशनल नंबर के एग्जांपल्स देख लेते हैं हम. लाइक 2/3, -17/8, 3. अगर मैंने सिर्फ 3 लिखा तो क्या ये रेशनल नंबर है? यस, व्हाई नॉट? वी कैन राइट इट लाइक दिस. यस. एंड -2, is it a rational number? Yes, again it is a rational number because we can write it like this. So all of these are the example of rational numbers. So we will study about rational numbers in this chapter. First of all we will learn about the different properties of rational numbers. आपको पता है जब भी कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है तो मैं सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज करवाती हूँ, तो वही हम इस बार भी करेंगे. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स? प्रॉपर्टीज हियर. ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स? तो पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. What is this closure property? Closure property is nothing. जब हम दो नंबर्स को ऐड, जैसे हम सपोज होल नंबर्स एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर भी होल नंबर ही आता है ना. तो सिमिलरली व्हेन वी ऐड टू रेशनल नंबर्स वी गेट अ रेशनल नंबर्स एज एन आंसर. ओके, लाइक A is a rational number and B is a rational number. So whatever answer we get, suppose we are getting C, so it will also be a rational number. This is closure property. When we add two rational numbers, we will get a rational number as its answer. It is this closure property will work in the case of subtraction also. ये plus में ही नहीं, subtraction में भी work करेगा. Answer minus का आ जाएगा. It's okay. A minus B is equals to C. That is it. Or suppose I will do B minus A. That can be minus C. This is also a rational number. This is also a rational number. So closure properties can work in addition also, in subtraction also. Let us come to multiplication. क्या ये प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन में काम करेगी या नहीं? अगर मैं A इंटू बी दोनों के दोनों रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर भी हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज 2 into 3 into 4/5.
What will I get? 8 upon 15. This is also a rational number. So closure property works in addition, subtraction as well as multiplication. In all three cases, this closure property is working. Again, closure property किसे कहते हैं? जब आप किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका जो आंसर आता है उन्हें सॉल्व करने के बाद वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है. दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी. बट क्या हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन की बात तो कर ली, पर डिवीजन को कहीं हम भूल गए. तो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में के लिए एप्लीकेबल है या नहीं? लेट अस चेक. सपोज हमने लिया एग्जांपल लिया 0 डिवाइडेड बाय 5. ओके, तो व्हाट यू गेट? 0. बट 5 डिवाइडेड बाय 0, क्या इसका कोई आंसर होता है? नो, इट इज नॉट डिफाइंड. और जो चीज डिफाइंड ही नहीं है तो उसमें वो प्रॉपर्टी कैसे एप्लीकेबल हो जाएगी? तो दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. इन तीनों केसेस में ही क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी एप्लीकेबल होती है, डिवीजन में नहीं. ओके, so this is a closure property. Let us come to the next property, that is commutative property. Commutative property, associative property, distributive property, this you have studied in your previous classes also in the integers, है ना, और whole numbers में आपने सबने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है. तो ये एक क्विक रिवीजन है इन प्रॉपर्टीज का. So second property is commutative property. कम्यूट करना क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना, अपना प्लेस चेंज कर देना, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उसी से कुछ मिलता जुलता वर्ड हमारा प्रॉपर्टी का नेम है कम्यूटेटिव. नाउ कम्यूटेटिव मीन्स व्हाट इज इट? अगर मैं a इंटू बी करती हूँ और या फिर b इंटू ए करती हूँ तो आंसर विल बी सेम. यस, एग्जाम्पल देख लेते हैं. 4 इंटू 3 और 3 इंटू 4. व्हाट डिड आई डू हियर? सिर्फ मैंने जो आपके नंबर्स है उनका प्लेस एक्सचेंज कर दिया है ना, इनको एक्सचेंज कर दिया है. व्हाट डू आई गेट हियर? 12. हियर आल्सो 12. बोथ आर सेम. तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर प्लेस चेंज हो जाने के बाद भी आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई डिफरेंस नहीं है आंसर में, दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी आपके प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में ही एप्लीकेबल होती है, डिवाइड में और सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती है. क्यों नहीं होती? अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करते सपोज, तो सपोज आई राइट हियर 4 अपॉन 5 minus 2 upon 5. What do I get? 2 upon 5. Yes. So, but if I change that, change the places. 2 upon 5 minus 4 upon 5. What do I get? Minus 2 upon 5. Are they same? No, they are not same. Here it is positive 2 upon 5. It is negative 2 upon 5. Minus sign is here. So, they are not equal, they are not same, the answers are totally different. So this commutative property is not applicable in subtraction also. Similarly, we will have the same problem we will be having in the case of division also. I will explain how. कैसे division में भी same problem आएगी हमारे पास. Suppose हमने किया 10 divided by 5. What do we get? 2. Okay. अब इसका हमने नेक्स्ट में किया, हमने we change the places. 5 divided by 10. What will we get? 5 divided by 10. 5 ones are 5 twos are 1 upon 2. Are they same? No, they are not same. So this property is only and only applicable into addition and multiplication only. It is not applicable in the division and subtraction. Now third property. Third property is associative property. Associative property means associate करते हैं किसी को किसी के साथ,
ग्रुप्स बना देते हैं, ऑर्डर में हम कर देते हैं कि हमें इन दोनों को सॉल्व करना ज्यादा इजी रहेगा, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. लाइक a plus b plus c, दे आर 3 रेशनल नंबर्स, और यहाँ पे भी मैं सेम रेशनल नंबर से लेने हैं, हमें ग्रुपिंग करनी है. तो क्या मैं ग्रुपिंग अलग अलग कर दूंगी तो क्या उसका आंसर सेम रहेगा? यस और नो? लेट अस सी थ्रू एन एग्जांपल. 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 plus 4. Here I make the group of these, and here I make the group of these two. So let us see. We always know according to board mass we have to solve the this bracket part first. So we will solve this bracket part. 2 plus 3 is 5 plus 4. Here 2 plus, we will solve the bracket here also, 7. 5 plus 4 9. 2 plus 4 9. So yes, associative property is applicable in this case. Associative property means to make the group similar types of groups so that we can solve our problem, our question easily. तो associative property applicable होगी आपके addition as well as multiplication में, division में और subtraction में वो साइन चेंज का आपका प्रॉब्लम रहेगा. इसी वजह से उन दोनों केसेस में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है. Okay, so this is associativity or associative property. Distributive property, the very important one and very quite confusing for some students also. Distributive property, fourth one. Distributive property like this one. ठीक है, a into in the bracket b plus c, दोनों का पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया a से. How will we solve it? It means a is multiplied by b and again a is multiplied by c. This and this. Here the plus sign, so we have put here प्लस साइन. बीच में एडिशन का साइन, जो भी यहाँ सिंबल एडिशन है तो एडिशन पुट करेंगे हम. वी कैन नॉट पुट एनी अदर सिंबल हियर. और मल्टीप्लिकेशन में ही होता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही होगा, इसकी जगह प्लस माइनस या डिवीजन का सिंबल नहीं हो सकता है इसमें. ओके, मल्टीप्लिकेशन ही कंपल्सरी होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव में. ये प्रॉपर्टी इस तरह से इस तरह जाती है, या फिर यहाँ से लेके यहाँ पे भी सॉल्व हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है. सपोज आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया, हाउ विल बी सॉल्व? मल्टीप्लिकेशन है, पेयर्स है, यहाँ पेयर में से एक एक ए निकालेंगे. ए कॉमन है, सिर्फ ए ही कॉमन है दोनों पेयर्स में. वन पेयर इज दिस, वन पेयर इज दिस, एंड इन बोथ द पेयर्स व्हाट इज कॉमन? ए. तो हम इस ए को बाहर निकालेंगे. मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पे, इसका मल्टीप्लिकेशन साइन लेंगे. अब ब्रैकेट के अंदर जो भी बचा है, नंबर बचे हैं आपके पास, वो लिख देंगे. इस पेयर में से क्या बचा है? बी. सो वी विल राइट हियर बी प्लस. इस पेयर में से क्या बचा है? C. So we will write here C. तो जब हम इसको कॉमन लेके सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर ये आएगा. ठीक है, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी.